Good morning, students. Welcome to Vinapani Online Education. Today we are going with our next topic from English grammar, which is common to all students. Okay, all classes, all levels. But today is a surprise that you have to guess about our today's topic with the starting of this picture. Yes, students, observe the given picture and think about today's topic. Any guesses? Think one more time. Maybe it's nouns. But noun is person, place, animal, birds, things, ideas. But what we are studying about today? So that picture is a noun. But what kind? Which one? How many? And how much? If we got the all questions by this picture, it means we are studying that topic. Okay? And our today's topic is adjectives. Yes, adjective. What is adjective? Let's find out that adjectives are modifiers. Adjectives are modifiers which can modify a sentence by using, we can modify any sentence by using adjectives. If we have only noun and pronoun and we have added adjectives on those sentences, then we can easily modify them. Okay, they modify nouns. If we are using adjective in any sentence, then we can modify noun also. They tell us more, that describes more about nouns or pronouns, so that we can easily understood about what they are talking about. Means about noun or pronoun. They tell us more about the noun or pronoun. Adjectives can be located by asking questions to the nouns, and adjectives can be located if you are asking such questions like what kind, which one, how many, how much, then you can easily find out the answer by using by adjectives in a sentence. Okay, next. So students, as you seen in the picture, as you saw in the picture that I saw a girl, some students thought that I saw a girl. Okay, it means it's a simple sentence. I saw a girl. मैंने एक लड़की को देखा. As you know that we are using this picture just because of clarify that what is an adjective. What is an adjective? It's a girl. We can call her as noun. Okay, but an adjective is a word that modifies a noun and describes about more about a noun or pronoun. Next sentence, some students make like I saw a pretty girl. Okay, a pretty girl. Pretty means प्यारी. I saw a pretty girl. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने आपको पिक्चर दिखाई तो कुछ बच्चों के दिमाग में आया कि ये तो एक लड़की की पिक्चर है, कुछ के दिमाग में आया एक प्यारी लड़की की पिक्चर है, किसके दिमाग में आया किसी छोटी लड़की की पिक्चर है ना. तो सबके दिमाग में अलग अलग आता है. लेकिन जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारे ड्राइव्स हो रहे हैं, जो ओरिजिन से निकल रहे हैं, हमारे जो माइंड से निकल रहे हैं, वो क्या है? आई सॉ अ लिटिल गर्ल, आई सॉ अ प्रिटी गर्ल, आई सॉ अ गर्ल, आई सॉ लिटिल प्रिटी गर्ल, आई सॉ अ प्रिटी लिटिल गर्ल, है ना. तो जो बता रहा है उसके बारे में, देखिए आई सॉ प्रिटी गर्ल, अ प्रिटी गर्ल, एक प्यारी लड़की. तो जो प्यारी है वो नाउन के बारे में थोड़ा हमें और बता रही है कि लड़की तो है लेकिन क्या है, प्यारी है, बहुत ही अच्छी लड़की है ना. देखिए आई सॉ प्रिटी लिटिल गर्ल, किसी बच्चे ने बोला कि आई सॉ प्रिटी लिटिल गर्ल. इस एक फ़ोटो को लेके देखिए, इस एक फ़ोटो को लेके आपने एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हुए अलग अलग एडजेक्टिव को, जैसे पहले आपने किया ए गर्ल, फिर आपने किया प्रिटी गर्ल, फिर आपने बोला प्रिटी लिटिल गर्ल, प्यारी एक प्यारी छोटी लड़की को मैंने देखा. ठीक है, तो सब एडजेक्टिव यूज़ किया, लेकिन एडजेक्टिव ने किसको मॉडिफाई किया? आई सॉ को तो इसने मॉडिफाई नहीं किया, इसने मॉडिफाई किया नाउन को. ठीक है,
और लड़के के बारे में इसने थोड़ा कुछ और हमें ज़्यादा बताया। ठीक है, जो एडजेक्टिव विशेषण जो होता है हमारा, एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं, जो हमारा विशेषण होता है बेटा वो हमें संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ और मतलब थोड़ा ज़्यादा बताता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विशेषण। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम एडजेक्टिव और उसके टाइप्स करेंगे। देखिए अब इसके टाइप्स हमारे पास हैं स्टूडेंट्स, 7 टाइप्स हैं हमारे पास इसके, जो कि हमारे क्या क्या हैं, क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको हम क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव, इंटेरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कंपाउंड। देखिए मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। क्वालिटेटिव हमारा होता है बेटा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। क्वांटिटेटिव क्या होता है, मात्रात्मक लगा लीजिए चाहे परिणामवाचक लगा लीजिए, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव हमारा जो होता है, ये स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव हमारा होता है बेटा, चाहे तो आप मात्रात्मक लगा लीजिए या परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव हमारा क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव थर्ड वन हमारा होता है प्रदर्शनात्मक विशेषण, जो कि प्रदर्शनात्मक होता है, यानी कि हमें बताते क्या अलग अलग चीज़ों के बारे में। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है बेटा संबंधवाचक, ठीक है, जो हमारा संबंध बताता है। इंटेरोगेटिव है हमारा प्रश्नवाचक, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा क्या हो गया, वितरण विशेषण, और कंपाउंड हो गया हमारा यौगिक, यानी कि जिसको कि हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये देखिए फर्स्ट हो गया हमारा जो क्वालिटेटिव है गुणवाचक, सेकंड हमारा हो गया मात्रात्मक या परिणामवाचक, थर्ड हो गया हमारा प्रदर्शनात्मक, फोर्थ है हमारा संबंधवाचक, फिफ्थ है प्रश्नवाचक, सिक्स्थ है हमारा वितरण, ठीक है, और सेवन्थ है हमारा यौगिक। इन सब के बारे में हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसको क्या आप बोल सकते हैं, हमारा क्या है, तो जो हमारा क्वालिटेटिव है वो है हमारा परिणामवाचक, ठीक है। देखिए टू डिस्क्राइब द क्वालिटी, ठीक है, सॉरी क्वालिटेटिव हमारा गुणवाचक था, सॉरी। टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, जो हमें बताता है किस बारे में, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, क्या कि कोई व्यक्ति है उसकी क्या विशेषता है ना, गुणवाचक है ना, ये विशेषता बताएगा, क्वालिटी बताएगा। अब वो चाहे किसी पर्सन की हो या किसी चीज़ की हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो इट्स साइज़, जनरल डिस्क्रिप्शन यानी फिजिकल हो सकता है, साइज़ भी हो सकता है वो, और फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, या तो एज के बारे में बता सकते हैं, या शेप मतलब कि आकार के बारे में, या रंग के बारे में, या मटेरियल के बारे में, ऑरिजिन एंड पर्पस, और वो कहाँ से, मतलब जो भी चीज़ें, या तो आपको कोई पर्सन के बारे में बता रहा है तो उसके बारे में बता सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट बता सकते हैं बेटा। अगर एग्जाम्पल में देखें तो देखिए क्या है हमारे पास एग्जाम्पल में, टॉल, एक्सीलेंट, स्लिम, यंग, स्क्वायर, प्लास्टिक, ठीक है, यानी कि वो आपकी शेप बता सकते हैं, आपके कलर बता सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन वो क्वालिटी होनी चाहिए, ओके। जैसे कि देखिए बेटा एग्जाम्पल्स में यहाँ आपको पता चलेगा कि क्रिस्टीना बाउंस द राउंड बास्केटबॉल, जो ये क्रिस्टीना है वो क्या कर रही है, इस राउंड बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल तो हो गई हमारी चीज़, और जो राउंड है ना इसकी शेप, राउंड हमारी क्या हो गई, शेप, ठीक है, तो बास्केटबॉल की जो शेप है उसको बता रही है, ठीक है। तो राउंड हमारा क्या हो गया बेटा यहाँ पे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और देखिए द कलरफुल बटरफ्लाई वॉज ऑन द फ्लावर, द कलरफुल बटरफ्लाई, बटरफ्लाई हो गई हमारा नाउन, और जो कलरफुल हो गया ना यानी कि रंग बिरंगी तितली, कलरफुल, जो बटरफ्लाई है वो उसकी क्वालिटी बता रहा है, मतलब जो कलरफुल है वो बटरफ्लाई की क्वालिटी बता रहा है कि वो कलरफुल है ना, तो वो हमारा कलरफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव, उसके कलर के बारे में बता रहा है ना। और अभी हमने क्या किया था, शेप, कलर, एज, साइज, वो कुछ ही बता सकता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। या फिर आप ये देख लीजिए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का, हिलैरी वोर अ स्ट्रिप्ड शर्ट, यानी कि हिलैरी, ये हिलैरी है हमारी, एंड
वो रहा स्ट्रिप्ड शर्ट, यानी कि ये जो है ना, देखिए इसकी धारीदार, स्ट्रिप्ड शर्ट क्या होती है, धारीदार, धारीदार जो इन्होंने शर्ट पहनी है उसके बारे में बताया। ये जो स्पेसिफाई किया गया है यहाँ पे, सॉरी, ये जो स्पेसिफाई किया गया है ना, स्ट्रिप्ड शर्ट को स्पेसिफाई किया गया बेटा, थिंग को स्पेसिफाई किया गया है यहाँ पे, हिलेरी को नहीं, ठीक है। शर्ट को स्ट्रिप्ड शर्ट बोला गया है। तो ये किसकी विशेषता बताती है हमें, शर्ट की विशेषता बताती है कि वो लाइनिंग वाली है, धारीदार है। या फिर ये देखिए, जॉन इज़ अ हैंडसम बॉय, यानी कि जॉन जो है प्यारा बच्चा, वो बहुत सुंदर लड़का है। एन एलिफेंट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, एलिफेंट एनिमल यहाँ पे ले लिया और हमने ये क्या बता दिया, इसकी स्ट्रेंथ बता दी कि स्ट्रॉन्ग है ये काफ़ी, ठीक है। आप इसका साइज़ बता सकते थे, लार्ज एनिमल, ओके, आप कुछ ही बता सकते हो, लेकिन वो उसका गुण बताना चाहिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी मात्रात्मक या फिर परिणामवाचक आप बोल सकते हैं। टू इंडिकेट द नंबर और अमाउंट ऑफ थिंग। क्वांटिटेटिव से आपको, जैसे आपको मात्रात्मक बोल दिया जाए तो समझ जाना चाहिए कि वो हमारे नंबर और अमाउंट के बारे में बात चलेगी यहाँ पे। इट कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी आप उसको गिन भी सकते हो, वो मात्रात्मक हो, आप उसको सिर्फ नाप सकते हो, गिन सकते हो, ये हो सकता है बेटा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अगर काउंटेबल है, आप गिन सकते हो तो क्वांटिटेटिव है, और नहीं गिन सकते हो, आप उसको नाप तो सकते हो, है ना। जैसे कि अगर दूध की बात करें आप, तो दूध को क्या आप गिन सकते हो, लेकिन आप उसको नाप सकते हो साइज़ में। एग्जाम्पल्स देखिए इसके क्या होते हैं। मोस्टली जो क्वांटिटेटिव है वो मात्रात्मक है हमारा, जो किसी मात्रा या अमाउंट के बारे में हमें बताता है, किसी संख्या या मात्रा के बारे में हमें बताता है कि वो कितने अमाउंट में है। एग्जाम्पल्स देखिए, मैनी, सम, मच, लिटिल, एनफ, ऑल, नो, एनी, होल, सेवरल, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, और भी होते हैं आपके, ठीक है। और ये जो अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए, शी फाउंड मैनी पेन्स, ठीक है, शी फाउंड मैनी पेन्स अंडर द टेबल, उसने क्या पाए, बहुत सारे पेन, आप उनको गिन सकते हो, लेकिन उसने क्या बोला, मैनी पेन्स, तो हमारा क्या हो गया, पेन्स की जो है क्वालिटी बता दी कि वो बहुत सारे हैं। देयर वॉज नो मिल्क, नो हो गया हमारा, ठीक है। देर आर 37 स्टूडेंट्स, 37 को तो आपने काउंट कर लिया, कुछ काउंटेबल हो गए और कुछ हमारे क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन हो गए, और जिसकी उसने विशेषता बताई वो हमारे क्या होगी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आई हैव मोर चिल्ड्रन इन माई क्लास, मैं अपनी कक्षा में, मतलब हमारी कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं। मोर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को बता रहा है क्या, मोर, यानी कि बहुत सारे बच्चे, तो ऑब्वियसली मात्रा बढ़ गई उनकी, ठीक है। और नेक्स्ट में देखिए, रीटा हैज़ लेस राइस इन लंच, यानी कि जो रीटा है वो लंच टाइम में, दोपहर के खाने में चावल कम लेती है, ठीक है। स्काई हैज़ मैनी स्टार्स, तो चावल की मात्रा क्या की, उसने मात्रा ले ली, कम, लेस, और मैनी, बहुत सारे सितारे हैं तो उनकी मात्रा भी बढ़ गई, है ना, आसमान में। मात्रा को बताया गया यहाँ पे, अमाउंट को, ठीक है, बताया गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अगर सीधे और सरल शब्दों में आप कहना चाहें तो आप इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कह सकते हैं। इट डिस्क्राइब्स काउंटेबल नाउन्स लाइक 5 फिंगर्स, 7 डेज, 3 गर्ल्स एक्सेट्रास, और ये आपका अनकाउंटेबल नाउन्स भी हो सकता है। देखिए जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में अगर हम एक और हमारा एग्जाम्पल लें तो क्या होगा, शी हैड 5 डॉल्स, उसके पास 5 गुड़ियाँ हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, और एक मतलब साल में क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं। अगर हम सिर्फ ये बोल दें कि एक साल में महीने होते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हाउ मच, कितने महीने, ठीक है, हाउ मैनी, तो हम क्या बोलेंगे, 12, 12 महीने, है ना, तो हमें आंसर मिल गया ना, ओके। देखिए बेटा, हमारे जो नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी प्रदर्शनवाचक विशेषण जो है, वो हमारा क्या करता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है, टू पॉइंट आउट नाउन्स, वो नाउन्स को पॉइंट आउट करता है, यानी कि वो बताता है उसके बारे में, हमें डेमोस्ट्रेट करता है, लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, एग्जाम्पल्स में देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे डेमोस्ट्रेट, यानी वो बताते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी भी चीज़ को। हम बोले दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई फ्रेंड, दोज बुक्स बिलोंग टू हर, या फिर कोई भी चीज़, जिस चीज़ को हम पॉइंट आउट करते हैं बाय यूजिंग फिंगर, या फिर
जैसे हमने बोलने में इंडिकेट कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया चीज़ों को, नाउन को, वो हमारा हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव नाउन। ओके, देखिए जैसे भी कोई भी चीज़ हमें बिल्कुल हमारे पास होती है तो हम क्या बोलते हैं, जैसे ये बुक है, ठीक है, ये पास में है, जो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, नियर को। दिस बुक इज़ माइन, तो इसके लिए हम करेंगे दिस। और अगर ये फार है यानी दूर, ठीक है, तो ये पिलोज जो है हमारे वो दूर है थोड़ा, तो हम क्या बोलेंगे, दोज पिलोज आर सॉफ्ट, वो जो तकिए हैं वो बहुत मुलायम हैं, ठीक है। नियर और फार, पास के लिए दिस और दीज, और दूर के लिए दोज और दैट हम यूज़ करते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, जिसको हम पॉइंट आउट करते हैं ना नाउन को, वो हमारा हो जाता है बेटा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फोर्थ वन है बेटा हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एज यू नो दैट वेयर वी कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, एंड दिस द वर्ड is interrogative adjective. Okay, the word is interrogative adjective, मतलब प्रश्नवाचक विशेषण, used with noun to ask question, जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है कि हम संज्ञा से प्रश्न पूछें। लाइक एग्जाम्पल्स में देखिए आप, what, whose, where, why, how and which। whose pen is this, हमने क्या पूछा, नाउन को लेके, ये जो पेन है, ये जो हमारे हाथ में चीज़ है जो नाउन है, whose pen is this, ये पेन किसका है। which way shall we go, हम किस रास्ते से जाएंगे। which way shall we go, हम किस रास्ते से जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने नाउन को लेके क्वेश्चन पुट किया। नाउन एडजेक्टिव बेटा कभी भी बिना नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई किए या फिर उसकी विशेषता बताए यूज़ नहीं होता है। तो पेन जो है ना, पेन के बारे में हमने पूछा कि विच हुज पेन इज दिस, ये पेन जो है वो किसका है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रश्नवाचक, जहाँ पे हमने प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन पुट किया है, तो हमारा क्या गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, जो कि हमारा संबंध बताता है। ये सब जो है वो क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। यूज टू शो पोजेशन, यानी कि हमारा जो संबंध बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिन शब्दों का, वो हमारे संबंधवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स। लगाइए देखिए, दिस इज हर हैट, ये जो टोपी है वो उसकी है, किसकी, उस लड़की की है। हर हैट यानी कि जो टोपी है वो उस लड़की के संबंध है, टोपी का और उस लड़की का। देयर पेरेंट्स कम टू माई हाउस येस्टरडे, माई हाउस यानी कि उसके पिता, माता पिता, देयर पेरेंट्स उसके जो माता पिता हैं, किसके, किसी पर्टिकुलर पर्सन के माता पिता जो हैं, उसका उसके माता पिता से संबंध हो गया। केम टू माई हाउस, मेरे घर आए, मेरे घर से, यानी कि घर का और मेरा जो संबंध है, उस घर में आए जिस घर से मेरा संबंध है, मेरे घर पर आए कल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या देखा कि संबंध बताया गया है, पोजेशन बताया गया, पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया गया, जहाँ पे संबंधवाचक किसी का किसी चीज़ के साथ संबंध बता दे, मतलब किसी भी चीज़, किसी भी नाउन के साथ अगर किसी दूसरी चीज़ का संबंध बताता है तो वो हमारा होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखिए, टू शो दैट अ पर्सन और थिंग आर काउंटेड कलेक्टिवली, वो क्या करता है, वो शो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो है हमारा वो शो करता है, बताता है हमें, यानी वितरण जो है हमारा, वितरण विशेषण क्या बताता है, टू शो दैट अ पर्सन और थिंग्स आर काउंटेड कलेक्टिवली, कि कलेक्ट करते हैं उसको गिन सकते हैं। नॉर्मली यूज्ड विद सिंगुलर नाउन, और ये जो है मुख्यतः एक वचन संज्ञा के साथ यूज होते हैं। रेफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल, ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स यानी कि समूह के बारे में तो बात करता है, लेकिन किसी एक बारे में बात करता है। एग्जाम्पल लगा लीजिए कि ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, ठीक है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरण वाचक विशेषण हो जाते हैं, जो कि आप मतलब ग्रुप में तो बात करते हैं लेकिन पर्टिकुलर पर्सन को ही बोल देते हैं। लाइक ईच पार्टिसिपेंट वॉज आस्क्ड टू कंप्लीट अ सर्वे, प्रत्येक पार्टिसिपेंट्स, मतलब प्रत्येक पार्टिसिपेंट्स को क्या बोला गया, वॉज आस्क्ड, उनको कहा गया टू कंप्लीट अ सर्वे, कि उस सर्वे को कंप्लीट करें, पूर्ण करें। ईदर ऑफ दीज मूवीज वुड बी इंटरेस्टिंग टू मी, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ईदर और नी, मतलब ईदर, एवरी, नीदर, ईच एंड, ये सब आपको यूज़ किया गया है।
वो शो करता है एक पर्सन्स के बारे में, थिंग्स के बारे में, जो कि हम कलेक्टिवली काउंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा बेटा कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए, मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, वो 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलके बना होता है एक एडजेक्टिव। ऑफन लिंक टुगेदर विद हाइफन, और यानी कि उसके बीच में ये जो हाइफन होता है ना, ये वाला जो लिंक है, वर्ड्स, 2 वर्ड्स को अगर जोड़ता है, हाइफन है, तो वहाँ समझ जाइए आप कंपाउंड एडजेक्टिव है। जैसे कि अगर आप यहाँ एग्जांपल में देखते हैं तो ओपन माइंडेड है ना, ओपन माइंडेड, ओपन के बाद ये हाइफन है और फिर है माइंडेड, तो आप आंखें बंद करके बस क्या कर दीजिए, इसको कंपाउंड एडजेक्टिव बोल दीजिए, इंडिकेट कर दीजिए, है ना। द लेडी इज़ वियरिंग अ पेयर ऑफ हाई हील्ड शूज़, जो औरत है उसने क्या पहन रखे हैं, मतलब जो जूते जोड़ी के पहन रखे हैं वो हाई हील्ड हैं, ऊंची हील वाले हैं। हाई और हील्ड के बीच में हाइफन है, तो हमें पता चल गया कि ये तो कंपाउंड एडजेक्टिव है, जो कि हाई हील्ड है। ठीक है, हाइफन से इसको शो किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा कि आज जो हमने एडजेक्टिव किया है, एडजेक्टिव का सबसे फर्स्ट हमने क्या देखा कि हमें जो है ना, अगर हम नाउन से पूछते हैं कि व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मैनी और हाउ मच, तो इन क्वेश्चंस के हमें आंसर मिल जाते हैं एडजेक्टिव से। ठीक है, और जहाँ पे हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं उसके हमने 7 पार्ट्स देखे हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्क्रिप्टिव, और क्या था हमारा, इंटेरोगेटिव, पोजेशन, सो ऑन, जो भी हम मतलब हमने जो है 7 पार्ट्स देखे हैं उसके, तो उनको भी हमने थोड़ा थोड़ा स्टडी किया है।